Hello, students. So, having understood the two foundational political philosophers, we will now move to Aristotle. Got it? Now, Aristotle, for better or worse, that is for you to decide, is generally understood as reforming or carrying forward what Plato did, or where Plato was wrong, or where Plato seemed more like an extremist. So Aristotle is trying to moderate it. Got it? Why? Because Aristotle, to start with, his epistemology is quite different from that of Plato. Now, for Plato, ideas were most important. He did not give prominence to matter, but Aristotle will give importance to both matter as well as idea. And that is why Aristotle is known for moderation or middle path, or you may say golden mean. Got it? See, for example, I have tried to provide a whole list of moderations which have been mentioned by Aristotle in his different works. Okay? For example, courage is somewhere between rashness. Like if somebody is overtly courageous, they will be generally rash, but जो coward हैं वो तो deficiency में आ जाएंगे. Then you take another example. Justice का extreme है इधर पे greed, and deficiency is loss. Liberality का है prodigality and meanness. ठीक है? ये एक टर्म जरूर याद रखिएगा. I don't know whether this works or not. नहीं करता. ठीक है? लिबरलिटी. वाई? ये शब्द हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं माइकियावेली में. गॉट इट? सो दिस इज अ काइंड ऑफ सिंपल लिस्ट है. थोड़ा सा दो बार रीड कर लीजिएगा. आई डोंट नो वेदर दे कैन आस्क इन जेआरएफ और नॉट, बट एटलीस्ट गिव इट ट्वाइस रीड, बिकॉज क्वाइट पॉसिबल वो ऐसे पूछ सकते हैं कि बाय इन्वोकिंग द गोल्डन मीन ऑफ एरिस्टोटल, इनका एक्सट्रीम का मीन क्या है ये बता दीजिए. ठीक है? सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट. Got it? So that is why in Aristotle we find moderation. Got it? And when Aristotle is talking about middle path, importance to both idea as well as matter, there's a very famous, you can say philosophy, very famous terms which are associated with Aristotle are, one is hylomorphism, and your other being teleology. You all must have come across this word, teleology, but hylomorphism के चांसेस हैं आपने शायद ना सुना हो. ठीक है? तो hylomorphism में we will come across this concept of actuality and potentiality. ठीक है? And teleology is theory of four causes. Theory of four causes. Got it? Now, just like Plato, he's concerned with state. Got it? So he will give his theory of state. He will give his theory of state. ठीक? अब स्टेट में रहता कौन है? Who lives in state? स्टेट में रहते हैं citizens. So he will give his theory of citizenship.
Got it? Now, Aristotle tries to differentiate between, you may say, active citizenship. Got it? So therefore, from here we will see the rise of ideas of civic republicanism and all. ठीक है? तो किसको citizenship नहीं देता प्लेटो? Slaves को नहीं देता, women को नहीं देता, elder को नहीं देता. तो यहाँ पे slave, and he will give his theory of slavery. ठीक है? We call it what? Functional theory of slavery. Functional theory of slavery. Got it? Now, similarly, स्टेट में सिटीजन्स होते हैं. सिटीजन्स आइडेंटिफाई करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? दैट दे आर प्रॉपर्टीड. They are propertied. Got it? They are propertied. So related to that, he will give his theory of property, which is actually the criticism of Plato's communism of property, because Aristotle is more a conservative as compared to Plato. ठीक है? ये स्टेटस कोइस्ट है. ठीक है? He believes in functional aspects of institutions. That means what? If some institution is existing, if some institution is there in a society, it means it has existed because it was serving some kind of function till now. That is why there is no requirement to radically uproot any such institution. Got it? So आपका जैसे फैमिली को भी प्रिजर्व करने की बात करेगा वो, प्रॉपर्टी को भी प्रिजर्व करने की बात करेगा वो. गॉट इट? तो दिस इज हिज थियरी ऑफ प्रॉपर्टी. नाउ सिंस ही इज टॉकिंग थियरी ऑफ प्रॉपर्टी, दैट मीन्स नॉट एवरीबडी हैज प्रॉपर्टी. गॉट इट? तो एथेनियन सोसाइटी या एंशियंट ग्रीक सोसाइटीज में थिंग्स वे नॉट परफेक्टली इक्वल, पीपल वे नॉट परफेक्टली इक्वल. तो यहां से उसकी आएगी थियरी ऑफ justice. Got it? And when we will try to understand his theory of justice, we will get to know about his theory on inequality, or equality we may say. Theory of inequality and equality. And here he will talk about two kinds of equality. One is arithmetic equality, and other being geometric inequality, geometric equality. Arithmetic equality and your geometric equality. Got it? क्योंकि यहाँ पे सबको इक्वल नहीं है. ठीक है? He is a proponent of proportionate equality. The proponent of proportionate equality. And linked to his idea of justice, inequality, equality is his theory of constitutions. Remember, he is known as father of political science. Okay, and he has studied some 158 constitutions. Got it? And you know, it is from Aristotle that we see that a distinct field of study known as categorization, or for that matter classification, etc. starts. Got it? तो ये हर चीज को जो है फैक्ट
कलेक्ट करता था, देन ही यूज्ड टू कम आउट विद जनरल थ्योरी, ठीक है। तो जो एम्पिरिसिस्ट ट्रेडिशन है, जो ऑब्जर्वेशन वाला ट्रेडिशन है, कलेक्टिंग फैक्ट्स, द क्लासिफिकेशन, everything starts with Aristotle. Got it? So much so that it is said that he used to have one of the biggest libraries of those times, and not only having library, his books were classified in the form as we see today, जो हम alphabetical order and how we create and how we preserve library, वो Aristotle से start होता है. तो he is known for his classificatory methods as well. ठीक है, तो when I say theory of constitution, ठीक है, उसमें जो कैटेगराइजेशन दिया है, जो उसने फैक्चुअल स्टडीज की हैं, कंपैरेटिव स्टडीज की हैं, दैट इज व्हाई इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. नाउ व्हेन ही इज स्टडीइंग कॉन्स्टिट्यूशंस, हिज मोर what he is concerned about is stability. ठीक है, whether states, which kind of constitutions या polity या governments are stable, which are not stable. Why? Because he knew that because of lot of internal factions, etc., the city states, they most of the time they fail. Got it? तो इससे ही इसका related है his theory of revolution. Theory of revolution. Got it? So this is how we will proceed, this is how we will understand. Got it? State, theory of state. State में citizens होते हैं. Citizens, active citizenship की definition दी है. Civic republicanism, they have property, the theory of property. Slaves do not have property. In fact, they are property of master. There is a theory of slavery known as functional theory of slavery. And when we see slavery, theory of property, etc., we find he is conservative status quo because he believes that, see, there is one more famous thing about Aristotle is that he gave a concept, ठीक है, हम आगे भी आएंगे, concept of reputed opinions. ठीक, reputed opinions. अब यहां पे भी एक डिफरेंस है बिटवीन प्लेटो एंड एरिस्टोटल. तो सी, प्लेटो coming from direct Socratic tradition, he was not interested in opinions. ठीक है, तभी आपने देखा होगा कि सोक्रेट, प्लेटो, दे बोथ डिफरेंशिएट बिटवीन बिलीफ एंड आइडिया. ठीक है, तो उसने जब रियलिटी शेडो ऑफ आइडिया बोली है, तो उसने बिलीफ सिस्टम को क्रिटिसाइज किया है, दैट वी बिलीव दैट दिस रियलिटी इज एक्चुअल रियलिटी, बट इन फैक्ट रियलिटी इज समथिंग एल्स. ठीक है, बट यहाँ पे एरिस्टोटल जो है वो रेप्यूटेड ओपिनियंस को डिक्राई नहीं कर रहे हैं. बाय, बिकॉज एरिस्टोटल बिलीव that knowledge is an incremental process, धीरे धीरे बढ़ता है, and knowledge is always built on tradition. ठीक है, तो जो नॉलेज एग्जिस्टिंग है, आप उसके माध्यम से यू मूव ऑन एंड देन यू क्रिएट न्यू काइंड ऑफ नॉलेज. ठीक है, एंड दैट इज व्हाई in Aristotle there is the prominence of logic. ठीक है, and in logic also he's trying to make use of axioms, syllogism, etc. ठीक है, in fact Aristotle is known as father of Western logic. ठीक है, सिर्फ वेस्ट का बोला जाता है क्योंकि इंडिया, चाइना में भी लॉजिक था एंड उनके इनिशिएटर्स कोई और थे. तो एरिस्टोटल इज इन फैक्ट नोन एज फादर ऑफ वेस्टर्न लॉजिक. गॉट इट? सो दिस इज अ ब्रॉड इंट्रोडक्शन एंड I would also give you lot of commentary या comment around Aristotle. So let's start. Got it? Let's start. Now the very first idea about Aristotle, and see, he has written a lot of books. ठीक है, लिस्ट है. He has written a lot on logic. He has written a lot on natural sciences. He has written a lot on the theory, etc. ठीक है, इसीलिए
एरिस्टोटल का अगर आप देखोगे, इनफैक्ट he has classified knowledge into three parts. Okay. First of all, he is known as father of political science. Why? Because he is focusing a lot on empiricism. ठीक है, वो फैक्ट कलेक्शन में बिलीव करते थे। वो इनफैक्ट उन्होंने कितने जानवरों का डाइसेक्शन किया है, ही स्टडीड देम डीपली, ही स्टार्टेड विद ह्यूमन बीइंग्स एंड ही एक्चुअली यू कैन से दैट जो मॉडर्न बायोलॉजी है वो कहीं ना कहीं हमको उसके लिए एरिस्टोटल को थैंक करना चाहिए। ठीक है, सो ही हैज क्लासिफाइड साइंस इनटू थ्री पार्ट, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल एंड प्रोडक्टिव। ठीक है, तो प्रोडक्टिव साइंस क्या होती है? जिससे आप कुछ प्रोड्यूस करते हो, कुछ अलग चीज बनाते हो, उसको उसमें वो रख रहे हैं आर्ट को, रेटरिक को। ठीक है, वन मोर थिंग, सोक्रेटिक ट्रेडिशन क्या है? रेटरिक को क्रिटिसाइज करना। दैट इज व्हाई यूज्ड टू क्रिटिसाइज सोफिस्ट, कि ये लोग सिर्फ रेटरिक करते हैं। कल मैंने बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी दिए थे आपको, हाफ मास्टर, हाफ टीचर, हाफ प्रोफेसर, सो ऑन सो फोर्थ, सेबाइन का था, बाकर का था। बट it is uniqueness about Aristotle that he will not decry rhetorics completely. In fact, he understands that rhetorics are a way to use language in such a manner that you get to propound knowledge, that you get to propagate knowledge. तो बिना rhetorics के knowledge आगे बढ़ाना is quite difficult, and that is why Aristotle will make use of rhetorics also. In fact, he has given his theory of rhetorics where he has differentiated between different kinds of rhetoric. ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ? जब when we'll do Machiavelli, so this rhetoric tradition was kind of lost in between, but then it was revived during in medieval times and also during Renaissance. And Machiavelli will pick those rhetorics, and then he will actually try to understand what do you mean by virtue. ठीक है, तो रेटरिक ट्रेडिशन जो है वो री इमर्ज होगा, एंड एरिस्टोटल he does not reject rhetorics as false belief or something, because we know he believes in moderation. So he will also make use of rhetoric also, and he will divide rhetorics into 2 or 3 parts, okay, that we will see. ठीक है, तो पहली आपकी क्या हो गई? सबसे पहले देख लीजिए प्रोडक्टिव साइंस। ठीक है, प्रोडक्टिव साइंस मींस दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस समथिंग एल्स। तो इसमें वो रख देंगे आपका से engineering, rhetoric, art, etc. Then comes the practical science. Practical science is those science which act more like a praxis. That science which helps in, say, improvement in reason, which helps you in actually achieving your true human potential. ठीक है, तो उसको उन्होंने उसमें रखा है ethics और politics को एक साथ। तो see, for him practical, तो प्रैक्टिकलिटी क्या है? मैन डूइंग एज ए मैन, एन एक्टिव मैन। व्हाई? बिकॉज मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। ठीक है, इनफैक्ट एरिस्टोटल बोलता है कि मैन के लिए फिलॉसफी करना इज समथिंग वेरी नॉर्मल। गॉट इट? और मैन बहुत खुश होकर फिलॉसफी करता है, क्योंकि फिलॉसफी अल्टीमेटली हेल्प्स इन यूडाइमोनिया, इन फ्लरिशिंग, बिकमिंग एक्टिव सिटीजन। गॉट इट? देन देयर इज अ थियोरेटिकल साइंस, एंड इसको भी इन्होंने जनरली 2-3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। थ्योरेटिकल साइंस को वो नाम देते हैं सोफिया, SOPHIA। ठीक है, आप लिख सकते हो यहीं पे सोफिया। प्लीज जॉटिंग, कीप जॉटिंग डाउन द नोट। जो भी मैं बोलता हूँ आपको लगता है कि यू कैन ऑलवेज रिविजिट, स्पेशली जो मैं स्टार्टिंग में आपको एक माइंड मैप बना के देता हूँ, हाउ टू प्रोसीड विद अ थिंकर, क्योंकि उनकी बहुत सी थियरीज होती हैं, वो सब प्लीज थोड़ा सा बना के रखा करिए। ठीक है, अगर नहीं बनाया है तो देन प्लीज ये आप टेक 2 minutes and please jot it down. Take 2 minutes and jot it down.
तो ये नेक्स्ट भी बना लीजिए जल्दी से। आई होप दिस इज डन। चलिए, ये तीन टाइप की, इसमें भी इन थियोरेटिकल या सोफिया आल्सो ही हैज डिवाइडेड theology, mathematics and natural science. And see, natural science में उन चीजों को पढ़ा जाएगा जिनमें मोशन होता है, ठीक है? तो बायोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री एंड ऑल। तो ही एक्चुअली डिवाइड्स थिंग्स इनटू टू पार्ट, थिंग्स which have motion, so that will be the part of natural science, and things which do not have motion उसको एरिस्टोटल बोलता है डिवाइन थिंग्स, गॉट इट? एंड उसकी स्टडी को थियोलॉजी बोला जाता है, गॉट इट? तो एक लिख लीजिए पॉइंट, ठीक है? एरिस्टोटल डिवाइड्स थिंग्स इनटू टू पार्ट्स, एरिस्टोटल डिवाइड थिंग्स इनटू टू पार्ट्स, मोशन एंड मोशनलेस। ठीक, लिखो थिंग्स विच हैव मोशन, थिंग्स विच हैव मोशंस are part of natural science and things which do not have motions are the part of theology, are the part of theology, ठीक है? Aristotle calls motionless things as divine.
ठीक। नाउ नेक्स्ट we'll start with Aristotle's theory of state. Now he's saying man is by nature a political social animal. तो यहाँ पे Aristotle he's trying to tell that it is not as if man has been forced to live in a state. ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर स्टेट थोप दिया गया हो या एकदम से out of the blue. No, it's a very natural corollary to have a state. uh, in chronological manner state might have come later on, but logically it is state where our actual human conditionalities are fulfilled. हम state के बिना कुछ भी नहीं है. क्यों? Because state is the highest form of association. Why? Because as human beings progress, you first create family, then you create village, then you create state. Why? Because not all your needs are fulfilled at the level of those institutions. आपकी फैमिली कुछ नीड्स फुलफिल कर सकती है, लेकिन हो सकता है आगे की नीड्स के लिए आपको विलेज कम्युनिटी की आवश्यकता हो. एंड द मोमेंट यू आर डन एट द विलेज कम्युनिटी देयर माइट बी सर्टेन नीड्स that might not be fulfilled at the level of village. Therefore, you need a higher association, and that is state. And that he will prove historically, that he will prove teleologically also. क्यों? क्योंकि state ही वो avenues provide करता है where as a human beings we are able to deliberate, where we are able to develop our speech capacity. ठीक है, उसको logos बोलता है, LOGOS. तो for Aristotle, human ability to speak, human ability to have a dialogue, human ability to converse, human ability to pass on culture, human ability to learn things, that always happens when you are in community, when you have people around you. That never happens in isolation. And a state is one institution, one association which ensures and which provides that kind of surroundings, that kind of an environment where as a human being you are able to develop your rationality, your speech action, your power to deliberate, your power to coordinate, your power to have a dialogue. ठीक है, तो इसीलिए कह रहा है मैन इज बाय नेचर पॉलिटिकल सोशल एनिमल, मतलब मैन कैन नेवर लिव इन एन आइसोलेशन. एंड इनफैक्ट यहाँ पे भी Aristotle has given exact number. So there's a very famous statement by Aristotle which says that 10 is no state and even 10,000 people make no state. ठीक है, तो ये अगर नेट जीआरएफ में पूछता है कि एरिस्टोटल के लिए मिनिमम और मैक्सिमम नंबर कितने होने चाहिए एक स्टेट में, तो एरिस्टोटल ने डिफरेंशिएट किया है कि 10 लोग जो होते हैं वो स्टेट नहीं बना सकते. ठीक है, इन ऑर्डर टू have a state you have that kind of number, otherwise वो state नहीं है. ठीक है, let me reconfirm the number. minimum तो 10 ही है. ठीक, एक सेकेंड, I have written it somewhere. I'll come back to it. I think it's 10 and 10,000 only. And इसीलिए आप देखते हो जब ये रेवोल्यूशन की बात कर रहा है तो रेवोल्यूशन में ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कहता है. फॉर हिम रेवोल्यूशन इज एनी काइंड ऑफ चेंज. दैट चेंज कैन बी इट्स 1 लाख. ठीक है, तो स्टेट होने के लिए 10 से ज्यादा होने चाहिए और 1 लाख से कम होने चाहिए. ठीक है, समवेयर इन बिटवीन. अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो भी प्रॉब्लम है, इससे कम हो रहा है तो स्टेट ही नहीं है. ठीक है, तो देयर इज अ स्टेटमेंट, लिख लीजिए. अ स्टेट कैन नॉट बी मेड, अ स्टेट कैन नॉट बी मेड from 10 men, from 10 men, comma, and from 1 lakh, and from 1 lakh, it is no longer a state.
ठीक, तो यहाँ से हमको एक ब्रॉड आइडिया मिलता है दैट हाउ सीरियस इज ही अबाउट द नंबर आल्सो, एंड दैट इज व्हाई इन हिज थियरी ऑफ रेवोल्यूशन he will say that number people increasing much या माइग्रेशन हो रहा है, वहाँ की पॉपुलेशन चेंज हो रही है, देन दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लमैटिक। ठीक है, तो इंडिया में जब व्हेन वी टॉक अबाउट द काइंड ऑफ माइग्रेशन, जैसे बार बार हमको खतरा होता है कि बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेशन होता है ऑल इन अवर नॉर्थ ईस्ट पेरिफेरी, दैट इज क्वाइट प्रॉब्लमैटिक, दैट लीड्स टू रेवोल्यूशन। ठीक है, नाउ so see, he is giving following arguments vis-a-vis the need for a state, why state is such a natural institution. So nature has not made men self-sufficient to need based. तो आप पहले फैमिली बनाते हो, फिर विलेज बनाते हो, एंड देन यू गो फॉर स्टेट। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। ठीक है, तो मैन की लाइफ वर्थ लिविंग कब होती है? when you are able to talk, when you are able to share, that happens only in a community. ठीक है, तो therefore logically also state is important, then teleological also। ठीक है, state is highest of all state of all associations, and state comes into existence for the sake of life and continues for the sake of good life। ठीक है, तो स्टेट अगर आप ऐसे देखो तो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, वो तो बहुत नेचुरल नीड्स में आई होगा। ठीक है, योर नीड्स इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, प्रैक्टिकल नीड्स एंड ऑल, बट इवेंचुअली इट बिकम्स अ सोर्स फॉर योर गुड लाइफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके प्लेटो में भी देयर इज अ कॉन्सेप्शन ऑफ हैप्पीनेस, यूडाइमोनिया। ठीक है, एंड एक डिफरेंस ये है प्लेटो के हैप्पीनेस में और एरिस्टोटल के हैप्पीनेस में, कि प्लेटो गोज फॉर एक्सट्रीम काइंड ऑफ हैप्पीनेस, बट एरिस्टोटल यहाँ पे भी मॉडरेशन की बात करेगा। तो इसके लिए हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम व्हाट? यूडाइमेनिया मींस फ्लरिशिंग। हाउ डू यू फ्लरिश? यू फ्लरिश व्हेन यू डू समथिंग एक्सीलेंस। बट यहाँ पे एरिस्टोटल के लिए एक्सीलेंस क्या है? हियर एक्सीलेंस एक्चुअली मीन्स the moderation, best practicable. Don't chase something best, you can't do that. You have to chase best practicable, given situation में जो भी practicable है, best practicable है, that is only excellence। got it? तो इसके लिए यहाँ virtue, excellence और ये सब के लिए एरिस्टोटल यूजेस द टर्म एरेट, ERETE। तो ये भी एक प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है। ऑल्सो इसी में कनेक्टेड चीज ये है कि बाई टेलिंग दैट मैन इज पॉलिटिकल एनिमल एंड state is highest of all associations, he actually wants to again categorize the kind of things animals can do and the kind of thing human beings can do। got it? So therefore he's saying that there are a few common things which can be done by both, be it plants, be it men, be it animals, and those are the vegetative things। लेकिन जो सोचने की क्षमता है, the work which requires reason, the that can be done only by humans, and only humans have capability to develop logos, speech action। got it? तो इसीलिए again you see throughout the categorization is working here। got it? तो उसके लिए it's obvious that you will need state। तो state is what? It's a union of family and villages। got it? अब यहीं से एक चीज जो आपको पकड़नी चाहिए कि अगर स्टेट को इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है, ऑब्वियसली ही विल ट्राई टू क्रिटिसाइज अगेन प्लेटो हियर बाय। आपको याद होगा कि प्लेटो ने जो है फिलोसफर किंग जब बनाया, और फिलोसफर किंग में इतने सारे उसने सारे पावर्स दिए, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए कह रहा है दैट अथॉरिटी ऑफ स्टेट्समैन इज डिफरेंट फ्रॉम अथॉरिटी ऑफ मास्टर्स। ठीक है, मास्टर की क्या चीज होती है? मास्टर आपसे कंप्लीट ओबीडियंस चाहता है। फैमिली में हु इज मास्टर? पेट्रियार्क इज द मास्टर। मास्टर स्लेव्स का भी मास्टर होता है। तो प्लेटो एरिस्टोटल ये कह रहा है कि भाई जो फैमिली में जिस काइंड ऑफ की अथॉरिटी चाहिए, दैट इज क्वाइट डिफरेंट
from the kind of authority that you need in a state. And see here again the difference. वहां पे डेस्पोटिक सिंगल रूलर या मोनार्क की बात हो रही है, यहाँ पे मिडिल क्लास की बात हो रही है, यहाँ पे एक आप कह सकते हो एक सॉर्ट ऑफ मिडिल क्लास डेमोक्रेसी की बात होगी यहाँ पे. देयरफॉर यू कैन नॉट इक्वेट टू थिंग्स, टू सिस्टम्स ऑफ रूलिंग. ठीक है, अगर आप फैमिली की कंटिन्यूटी में मास्टर या पेट्रियार्क को ही फिलोसोफर किंग बनाकर आप पूरे स्टेट का रूलर बनाओगे तो इट विल लीड टू डेवास्टेशन. बेटर है कि यू अंडरस्टैंड दैट अथॉरिटी इज डिफरेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेटमेंट्स एंड द मास्टर. ठीक है, तो मास्टर की अथॉरिटी फैमिलियल होती है, स्टेट्समैन की जो अथॉरिटी होती है वो सबको साथ में लेकर चलने की होती है, एंड इट डिमांड्स अनदर काइंड ऑफ इंटेलिजेंस. ठीक है, तो प्लेटो देखो वही कह रहा है स्टेट इज अ फैमिली, एरिस्टोटल कह रहा है स्टेट इज अ फैमिली ऑफ फैमिली, एंड देयरफॉर इट विल रिक्वायर सिटीजंस जिनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सिविक रिपब्लिकनिज्म होना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज हिज सेकेंड आइडिया. नाउ थर्ड आर्ग्यूमेंट विथ रिगार्ड टू दिस इज टीलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ. ठीक है, कि आप पैदा क्यों हुए हो, दैट शुड बी योर फाइनल कॉज. जैसे for time being you're watching this lecture, your final cause as of now is to do a PhD, get into good college. ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी theory of four causes देता है, और यहाँ पे वो बताता है कि एवरीथिंग विच इज बॉर्न. ठीक है, यहाँ पे एक आप ब्रॉड स्टेटमेंट ले सकते हो कि नेचर कैन डू नो रॉन्ग. तो जैसे कि इफ यू सी, in fact these are the examples used by Plato in his writings. जैसे मान लो एक बतख है. ठीक है, अब बतख के फीट जो होते हैं वो वेब्ड होते हैं. ठीक है, वेब फीट. व्हाई? बिकॉज इट हैज टू स्विम इन वाटर. तो अब आदमियों को तो वेब फीट नहीं दिए हैं भगवान ने, क्योंकि हमको तो स्विम नहीं करना है. तो दैट मीन्स व्हाट, नेचर हैज डन नो रॉन्ग. वॉट एवर नेचर हैज क्रिएटेड, इट हैज क्रिएटेड बिकॉज देयर इज सम फाइनल कॉज फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग टू डू. ठीक है, और जैसे ह्यूमंस भी हैं, उनका भी सबका कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, दैट इज नोन एज theory of four causes. इसमें फाइनल कॉज क्या है आपका? टीलियोलॉजी. आप क्यों पैदा हुए, व्हाट इज योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव टू डू एज अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फाइनल. ठीक, इसमें है आपका मटेरियल कॉज पहला, देन देयर इज फॉर्मल कॉज, देन देयर इज एफिशिएंट कॉज. ठीक, एंड द फाइनल वन इज teleology, final cause. And here he makes use of an example of bronze sculpture. ठीक, ब्रॉन्ज स्कल्पचर. तो ब्रॉन्ज स्कल्पचर बना किसका है? व्हाट इज द मटेरियल? द मटेरियल इट इज मेड अप ऑफ, दैट इज ब्रॉन्ज. ठीक है, व्हाट शेप इट इज टेकिंग. जिस स्कल्पचर में मान लो मैन बनाया है, वीमेन बनाया है, दैट इज द फॉर्म इट इज टेकिंग अल्टीमेटली. एफिशिएंट कॉज, किसने बनाया है उसको. ठीक है, तो वन पॉटर माइट हैव मेड इट, वन स्कल्पचर माइट हैव मेड इट. एंड टेलियोलॉजी, व्हाट इज द फाइनल कॉज, कि वो जाकर के कहीं म्यूजियम में या कहीं जाकर के उस म्यूजियम की शोभा बढ़ाए, दैट इज फाइनल कॉज. गॉट इट? सो Aristotle is driven by four causes, and he says if you have to understand why anything is existing here, nature has made it, it is existing, you can always find out by the help of these four causes कि वो क्यों है, वो क्या करेगी. तो ह्यूमन का फाइनल कॉज क्या है? टीलियोलॉजी. हैप्पीनेस, यूडाइमोनिया, फ्लरिशिंग, वो कहाँ संभव होगी? ओनली इन स्टेट. व्हाई? बिकॉज ओनली स्टेट प्रोवाइड्स द एवेन्यूज टू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लोगोज और लॉजिक. गॉट इट? स्पीच एक्शन, डेलिब्रेशन के लिए. वहीं पे आपका रीजन जो है
परफेक्टली डेवलप होगा, बाकी नहीं हो सकता. दैट इज वाई in the evolution you first need family, then village, then ultimately state. So this is his theory of four causes teleology. ये याद रखेंगे that he uses bronze sculpture का example. ठीक है. अब इसका एक आउटकम क्या है? There is a famous dictum that nature can do no wrong. Now here also he explains the importance of teleology and why something is existing. उसको ऐसा बनाया ही क्यों है? यहाँ पे वो एक स्नेक का एग्जाम्पल देता है. ठीक है, takes an example of snakes. Do you know that snakes, in order to reproduce, they do so by coiling with each other. ठीक, and snakes generally do not have penis as well as testicles. ठीक, penis क्यों नहीं है? Because they do not have legs. ठीक है, टेस्टिकल्स क्यों नहीं है? दैट इन ऑर्डर टू कॉपुलेट स्पर्म शुड बी ऑफ सम काइंड ऑफ टेम्परेचर, तभी रिप्रोडक्शन होगा. अब स्नेक्स की बॉडी इतनी लंबी होती है कि बाय द टाइम दे इजैकुलेट और बाय द टाइम दे पुट इन स्पर्म, देयर आर चांसेस दैट द टेम्परेचर माइट ड्रॉप एंड द स्पर्म माइट टर्न कोल्ड. तो फिर तो वो इनफर्टाइल रह जाएंगे, वो कभी रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे. ठीक है, दैट इज वाई अगर स्नेक को ऐसा बनाया है भगवान ने तो उनकी टीलियोलॉजी कुछ और थी. ठीक है, दैट्स व्हाई they got this kind of form so that they का final cause क्या है? teleology, to reproduce and all, to exist. Got it? तो दो examples आप बिल्कुल याद रखेंगे to understand his teleology and to understand his dictum nature can do no wrong. तो he gives example of snake पहला and secondly the bronze sculpture. Got it? ये add on है. I think ये पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते, but you should know. ठीक है, तो आई होप यू गॉट द जिस्ट ऑफ अनदर स्टेटमेंट that authority of statesman is different from authority of master, and that is the reason we saw yesterday in Plato that he say law is reason without passion. क्यों? अगर आपको मास्टर की अथॉरिटी चलानी है तो घर में कितने भी लॉज बना दो, वो इमोशनल हो, नॉन इमोशनल हो, पर्सनल हो, इम्पर्सनल हो, फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर आपको स्टेट रन करना है, सिटी स्टेट रन करना है, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट that law should be impersonal. Law should come out of deliberation. Law should come out of checks and balances. नहीं तो इनकी women fancies चल रही होंगी. Got it? Now moving on forward, we will move to Aristotle's theory of citizenship. As I told you, ये जो स्टेट को नेचुरल देखते हैं, ऑर्गेनिकली देखते हैं, for them citizenship will be more like a duty rather than a right. ठीक है, तो गांधी जो है वो इन सब व्यूज से काफी इंस्पायर्ड है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ड्यूटी, दैट मींस वी ओ सर्टेन एक्टिव ड्यूटी टुवर्ड्स द स्टेट. तो इसीलिए हमें एरिस्टोटल में एक्टिव कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप देखने को मिलता है. एंड देयरफॉर ही विल से दैट सिटीजनशिप ensures law making, judicial functions, your participation in deliberation, day-to-day activities, etc. अब true to his nature, Aristotle will first classify. ठीक है, तो वो क्लासिफाई करेंगे, पहले उन लोग को अलग कर देंगे क्लासिफाई करके जो सिटीजन्स नहीं हो सकते. कौन नहीं हो सकता? ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन, विमेन, स्लेव्स एटसेट्रा. क्योंकि यू कांट एक्सपेक्ट देम टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द वर्क्स ऑफ सिटीजनशिप बिकॉज सिटीजनशिप इज अ ड्यूटी. तो बचा क्यों? फाइनली मेल प्रॉपर्टीड एबल्ड मैन. ठीक है, तो यहाँ पे इससे इसका क्रिटिसिज्म भी होता है. क्यों? प्लेटो गेव women equal chance, but Aristotle is not giving an equal chance. Got it? This people call it very narrow view of citizenship. ठीक है, आज की डेट में किसकी थियरी चलती है सिटीजनशिप की? T.H. Marshall, who will talk about socio-economic as well as political citizenship. Got it? Now again, तो आपने देखा कि उसको स्टेट के लिए फंक्शंस करवाने हैं, स्टेट के लिए काम करवाने हैं, इसलिए वो इस काइंड ऑफ थियरी दे रहा है. ठीक, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगेन हिज थियरी ऑफ स्लेवरी. स्लेवरी इज नॉट ओनली नेचुरल बट डिजायरेबल. दिस इज अ वेरी फंक्शनलिस्ट व्यू ऑफ स्लेवरी कि भाई स्लेव्स अच्छे होते हैं. स्लेवरी जो है वो स्लेव्स के लिए भी अच्छी है. क्यों? मास्टर की प्रेजेंस में स्लेव कैन डेवलप रीजन, और अल्टीमेटली टेलियोलॉजी ह्यूमन बीइंग्स की क्या है?
to develop reason. Moving forward, he differentiates between two kinds of slaves, natural slaves and slaves by law. तो natural slaves वो हैं जो naturally जिनमें reason नहीं है, ठीक है, they might be good doing something else, they might be good working for their masters, but they are natural slaves. अब उनकी क्या है, in the presence of master they can develop certain level of reason, and that is why Aristotle says whenever natural slaves are able to develop reason they can be freed. ठीक है, तो उनके लिए एक स्कोप रखा है स्लेवरी को रिफॉर्म करने का. एंड ही ऑल्सो सेज दैट अ मास्टर शुड नॉट मिसट्रीट हिज और हिज स्लेव. ठीक है, तो कुछ रिफॉर्म्स भी दिखते हैं. सेकेंडली, स्लेव्स बाय लॉ, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, युद्ध होते रहते थे. रिमेंबर पेलोपोनेशियन वॉर, जहां से ये सब चीजें शुरुआत हो रही हैं. इनके लिए कह रहा है दे कैन नॉट बी फ्रीड. ठीक है, नेचुरल स्लेव्स कैन बी फ्रीड, प्रिजनर्स ऑफ वॉर और द स्लेव्स बाय लॉ दे कैन नॉट बी फ्रीड. ठीक है, और क्यों जस्टिफाई कर रहा है कि भाई नेचुरली इफ यू विल सी स्लेव्स आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, देयरफॉर दे वर्किंग फॉर देयर मास्टर्स is actually helping their masters so that masters can go and invest their time in the active citizenship, deliberation करें, लॉ बनाएं, जुडिशियल फंक्शंस में पार्टिसिपेट करें. तो ये मास्टर के लिए भी बेनिफिशियल है, फिर स्लेव के लिए भी बेनिफिशियल है, बिकॉज स्लेव जो है मास्टर के कंपनी में रह करके रैशनल बनने की कोशिश कर सकता है. ठीक है, तो he will say natural and useful, it is utilitarian for state by economic system, participation of people and all. यूटिलिटी फॉर मास्टर्स, बिकॉज मास्टर्स जो हैं उनको फ्री टाइम मिलेगा अपने वर्ट्यू शार्पन करने का स्टेट के पार्टिसिपेशन में. एंड स्लेव बिकॉज दे कांट लिव ऑन देयर ओन, दे गेट टू डेवलप देयर वर्च्यूज. ठीक है, but this is a very again narrow view. It will be, if you link with Immanuel Kant gives the concept of categorical imperatives, and under that you cannot treat any person as a means for your end, and the most basic that one is expected to treat others is human dignity. ठीक है, आप बिना डिग्निटी के किसी को ट्रीट नहीं कर सकते हो. Now similarly, Aristotle's theory of property again function, and here he is criticizing Plato's whole plan of communism. ठीक है, तो he will analyze three different kinds of system of properties which can be done. पहला है कॉमन ओनरशिप, कॉमन यूज. तो भारत में जितने सुलभ शौचालय चलते हैं, आपको लगता है कि उनकी क्या हालत होती है? बिकॉज एवरीबडीज प्रॉपर्टी इज नोबडीज प्रॉपर्टी. कोई भी उसके प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन में कुछ काम नहीं करेगा. आप देखते हो इंडिया में जो सारी डिबेट्स चल रही है ऑन फ्रीबीज एंड ऑल, दैट कैन बी लिंक्ड हियर, क्योंकि वो पीपल डोंट वैल्यू व्हाट दे गेट इजीली. ठीक है, जो भी फ्री में मिल गया उसकी कोई वैल्यू नहीं करता. ठीक है, सेकंड इज कॉमन ओनरशिप, इंडिविजुअल यूज. ठीक है, तो डू यू थिंक दैट दिस इज फीजिबल कि प्रॉपर्टी सबकी है लेकिन आकर के यूज कोई एक बंदा करेगा? जैसे इंडिया में अगर आप देखते हो ट्राइबल राइट्स या ट्राइबल एरियाज में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग है. द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू देम, दे ओन फॉरेस्ट इज अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ एवरीवन, इट्स अ पब्लिक गुड फॉर देम, बट एक्सप्लॉइट करने के लिए किसी कॉर्पोरेट या किसी को दे दिया जाता है. गॉट इट? तो इवन दैट इज नॉट फिजिबल, नॉट प्रैक्टिकल, एंड इट विल बी वेरी एक्सप्लॉइटेटिव, विल लीड टू inequality in the society. Got it? Therefore he will go for the third one, individual ownership, common use. ठीक है, ये परफेक्ट एग्जांपल है इसके गोल्डन मील का. क्यों? देखो यहाँ प्रॉपर्टी शोज व्हाट, प्रॉपर्टी शोज योर पर्सनालिटी. यही चीज आगे जाकर के लॉक, मिल ये सब बोलेंगे when they give theory, when they talk about natural rights, when they talk about right to property, life and all. because personality क्यों दिखती है प्रॉपर्टी में? because only rational people have the capacity to make property. फूल या स्लेव्स को तो नहीं है इतना ज्ञान. ठीक है, तो your property, your what you have acquired actually reflects your personality. तो अगर आप लोगों को प्रॉपर्टी बनाने का मौका दोगे तो it will act as a motivating factor, it will be productive, it will give
इट विल प्रोवाइड स्टेट एवेन्यूज फॉर टैक्सेशन एटसेट्रा, तो स्टेट भी अपना काम चला सकता है। फिर कॉमन यूज जो है उससे आप ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं आप उसको ओवरकम कर सकते हो, ठीक है। जो इनइक्वालिटीज हैं सोसाइटी में, तो देखो एरिस्टोटल बोलेगा बोथ काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज, एक्चुअल इनइक्वालिटी एज वेल एज परसीव्ड इनइक्वालिटी, बोथ लीड्स टू व्हाट, बोथ काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज लीड टू रेवोल्यूशन, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन 158 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद एट द एंड ऑफ द डे एरिस्टोटल फील्स दैट इन ऑर्डर टू ब्रिंग स्टेबिलिटी you should ensure there is no first actual inequality and perceived inequality, ठीक है। फिर दिस आइडिया जो अगर आप देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टीशिप काउंसिल की तरफ जाता है, या आप इसमें जैसे मॉडर्न डेज में स्टेट टैक्स लगाता है और टैक्स का यूज करता है वेलफेयर करने के लिए, दैट इज एकिन टू दिस काइंड ऑफ आइडिया। गॉट इट। सो अगर मान लीजिए जेआरएफ में क्वेश्चन आया that in which of the following we see the functionalist perspective of Aristotle, तो आपको स्लेवरी में भी दिख जाएगा, प्रॉपर्टी में भी दिख जाएगा, गॉट इट। तो दोनों टिक लगा के आएंगे आप, ठीक है। व्हाट इज फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव? Functionalist perspective believe or propounds the idea that if anything is existing for the longest time and they continue to do so, it means they are definitely serving some positive function in the society and therefore they should be conserved, therefore they should be maintained, ठीक। अब नेक्स्ट हम आते हैं एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड एज आई टोल्ड ही इज नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एंड आफ्टर रीडिंग 158 कॉन्स्टिट्यूशंस he comes up with his division of his classification of constitution। अब यहाँ पे वो दो पैरामीटर्स लेता है, एक पैरामीटर है नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, और दूसरा है कि इज द रूल इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल और द रूल इज इन अगेंस्ट द पीपल। तो अगर रूल जो है लोगों के इंटरेस्ट में हो रहा है दैट इज नोन एज नॉर्मल, अगर रूल लोगों के इंटरेस्ट में ना होकर के रूलर के इंटरेस्ट में हो रहा है ऑफ अ vested interest of some selected few, that is known as abnormal or perverted form of constitution, ठीक है। तो if एक पर्सन रूलर है, ठीक है, वो सबके लिए रूल कर रहा है, दैट इज नोन एज मोनार्की और द रूल ऑफ फिलोसोफर किंग, बट देन finding a philosopher king is very difficult and ensuring that philosopher king remains non corrupt is difficult। तो जब भी ये होता है तो उसका perverted form tyranny हो जाता है, ठीक है। तो टायरेनी इज ऑल अबाउट वन पर्सन जो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। देन फ्यू, तो इसका नॉर्मल फॉर्म क्या हुआ? एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। तो जो प्रिंसली फैमिलीज होती हैं, एरिस्टोक्रेट्स होते हैं, दे माइट वर्क फॉर सोसाइटी एज अ होल, बट इसका अगेन परवर्टेड फॉर्म इज ओलिगार्की। देन मेनी, to rule of many middle class people is known as polity, but rule of मेजॉरिटेरियन अनएजुकेटेड इग्नोरेंट पीपल इज नोन एज डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इसके लिए पॉलिटी जो है इट्स द बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म, व्हाई? क्योंकि ये टू एक्सट्रीम्स के बीच में का एक मिडिल ग्राउंड है, ठीक है। सो प्लेटो ने क्या बोला था? रूल ऑफ फिलोसफर किंग इज बेस्ट, बट प्रैक्टिकेबल नहीं होता है। हमने देखा भी कि लॉज में इवेंचुअली जाकर के वो परसुएजन की भी बात कर रहा है, वो सिटीजन पार्टनरशिप की भी बात कर रहा है, एंड इज क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशंस लाइक नॉक्टर्नल काउंसिल एंड ऑल, ठीक है, फिलोसफर किंग को हेल्प करने के लिए। तो बच क्या गया? पॉलिटी। पॉलिटी इज द बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म, रूल ऑफ मेनी बट नॉट सो मेनी, एंड रूल ऑफ मिडिल क्लास। व्हाई मिडिल क्लास बेटर? क्योंकि मिडिल क्लास को स्टेबिलिटी में इंटरेस्ट होता है टू स्टार्ट विथ। सेकेंडली, जो मिडिल क्लास होता है उसको ना रिच सस्पिशन से देखते हैं ना पुअर सस्पिशन की नजरों से देखते हैं। उनके लिए मिडिल क्लास इज समथिंग दे कैन रिमेन अलूफ ऑफ, दे कैन नॉट बी बॉदर्ड विद, ठीक है। एंड पॉलिटी इज मोर लाइक अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी बट नॉट अ मोबोक्रेसी। नाउ कमिंग टू एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन, एज आई टोल्ड यू, प्लेटो जो है बिलीव्स इन स्टेटस को, कंजर्वेशन, तो उसके लिए स्टेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हाउ विल ही डिफाइन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो उसके लिए रेवोल्यूशन, स्मॉल, इवन स्मॉल चेंज विल कम अंडर द परव्यू ऑफ रेवोल्यूशन। तो जब वो स्टेट में कितने लोग होने चाहिए उसकी तक अगर डेफिनेशन दे रहा है, दैट मीन
that Aristotle was very meticulous about what and how he actually envisioned a state. Got it? तो वो 158 कॉन्स्टिट्यूशंस करने के रीड करने के बाद he comes to the conclusion that in every system inequality whether actual or perceived is the most general cause of revolution. ठीक है, बट उसके अलावा देर आर फ्यू पर्टिकुलर कॉजेस विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम. तो मोनार्की में है जेलिसी अमंग फैमिली मेंबर्स. ठीक है, आप जैसे इंडियन उसमें भी देख लो तो चाहे आपने देखा हो रिवोल्ट ऑफ 1857 झांसी रानी, तो उसमें भी अंदर बहुत इंटरनल राइवलरीज चलती रहती थी, कहीं भी होता है, इट्स वेरी नॉर्मल. देन एरिस्टोक्रेसी, पुअर विल रिवोल्ट अगेंस्ट द रिच. ठीक है, डेमोक्रेसी, रिच विल रिवोल्ट अगेंस्ट द पुअर. तो जनरल कॉजेज जो है करप्शन, एरोगेंस, ये सब आपको दिख जाएगा. द मोस्ट जनरल कॉज, मोस्ट कॉमन कॉज इज इनइक्वालिटी. ठीक है, एंड इनइक्वालिटी इज मोर लाइक व्हाट, सेंस ऑफ इनजस्टिस. ठीक है, परसीव्ड हो, एक्चुअल हो, कुछ भी हो सकता है. एंड फ्रॉम हियर वी विल मूव टू द आइडिया ऑफ जस्टिस. ठीक है, अब जनरली जब ये जस्टिस की बात करते हैं वी विल टॉक मोर अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मीन्स व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिंग व्हाट इज वैल्यूएबल इन सोसाइटी. ठीक है, तो आप मेरिट जो होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, आप मेरिट डिसाइड करते हो विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल, किसको क्या मिलेगा, किस कौन क्या डिजर्व करता है, वही जस्टिस है, वही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो गुड्स विच आर वैल्यूड इन सोसाइटी. ठीक, नाउ ही इज अ प्रोपोनेंट ऑफ प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी. ठीक है, प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी मतलब आप सब कोई को एग्जैक्टली यूनिफॉर्म ट्रीट नहीं कर सकते. ठीक है, इसका फेमस स्टेटमेंट है, इट इज अनजस्ट टू ट्रीट अनइक्वल्स इक्वली, इट इज इक्वली अनजस्ट टू ट्रीट इक्वल्स अनइक्वली. ठीक है, मतलब आप एक रिच को पुअर, एक रिच पर्सन और एक पुअर पर्सन को इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते. यू कैन ऑलवेज ट्रीट टू पुअर्स इक्वल बट यू कांट द रिच एंड द पुअर. व्हाई? बिकॉज उनका कॉन्टेक्स्ट अलग है. तो इट इज अनफेयर टू ट्रीट अनइक्वल्स इक्वली, इट इज इक्वली अनजस्ट टू ट्रीट इक्वल्स अनइक्वली. ठीक है, यहीं पे इसका कॉन्सेप्ट आता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी और इक्वालिटी. ठीक है, तो ऐसे लिखो, यहां पे लिख लो. देखो, एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी. ठीक, तो अरिथमेटिक इक्वालिटी क्या हो गई, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना. ठीक है, और ज्योमेट्रिक इक्वालिटी क्या हो गई, दैट यू आर ट्राइंग टू ट्रीट पीपल अकॉर्डिंग टू व्हाट दे हैव, उनका सोल क्या है, व्हाट दे डिजर्व, उनमें टैलेंट क्या है. ठीक है, तो आप मेरिट के हिसाब से जब चीज़ों को दोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, दैट विल लीड टू ज्योमेट्रिक इक्वालिटी. ठीक है, तो इसमें से लिखो एरिथमेटिक इक्वालिटी, डैश करके लिखो, ट्रीटिंग एवरीवन इक्वल इन सोसाइटी. ठीक, और नेक्स्ट लिखो ज्योमेट्रिक इक्वालिटी.
ठीक है, लिखो इट मीन्स पीपल डिफर एंड देयरफॉर they should be treated accordingly, and therefore they should be treated accordingly. They should be treated accordingly. ठीक है, again, since Plato is concerned about not giving power to one person, philosopher king, kahin na kahin when he is talking about checks and balances and people participation, he is talking about rule of law. Rule of law क्या है? लिमिटेड गवर्नमेंट का या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पार्ट है. ठीक है, तो एरिस्टोटल्स व्यू क्या है? लॉ इज रीजन विदाउट पैशन. ये हमने कल भी देखा था कि लॉ जो होता है वो कलेक्टिव विजडम से आता है, तो एक पर्सन के विम्स एंड फैंसीज पे डिपेंडेंट नहीं होता. सेकेंडली, लॉ कैन ऑलवेज बी चेंज्ड. ठीक है, आप डेलिब्रेट करिए, फॉर फाइंडिंग सम प्रॉब्लम्स इन अ गिवन लॉ यू कैन ऑलवेज चेंज दैट काइंड ऑफ लॉज. ठीक है, so this is all in Aristotle majorly. ठीक है, now I would like you to write something जो आपको नोट्स में नहीं मिलेगा. ठीक, तो पहला लिखो, पहला लिखो, ऐसे लिख लो. फर्स्ट लिखो, एंशियंट सोर्स to know about Aristotle is Diogenes. Diogenes Laertius. Diogenes Laertius. ठीक, and he has given a very famous statement on Aristotle. लिखो, लिखो, he has called Aristotle as Paul who has kicked his mother. जिससे मैं देख रहा था एक आध क्वेश्चन आते हैं नेट जीआरएफ में, एक स्टेटमेंट दे देता है एंड पूछता है ये स्टेटमेंट किसको डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है, तो ऐसे आ सकता है. ठीक है, तो फोल हु हैज किक्ड हिज मदर. ठीक है, तो एक्चुअली फोल एक घोड़ा होता है. ठीक है, और जब ये दूध ज्यादा पी लेता है तब अपनी माँ को किक करता है. तो यहाँ पे मदर कौन हो गई? प्लेटो. ठीक है, तो एरिस्टोटल इज लाइक अ स्टूडेंट हु डिनाइड हिज मास्टर. फोल हु किक्ड हिज मदर. एक्चुअली प्लेटो भी जो है मजाक में एरिस्टोटल को फोल बोला करते थे, वहां से पिक हुआ है. ठीक है, तो राइट दिस. द मोस्ट एंशिएंट सोर्स टू नो अबाउट एरिस्टोटल इज Diognetus Laertius, and he has described Aristotle as fool who has kicked his mother. ठीक, अब इसी में आप एक और स्टेटमेंट लिख लीजिए. Plato is dear. Truth is dearer. Will Durant. Plato is dear.
ट्रुथ इज डियरर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। ठीक है, तो प्लेटो कौन बोल रहा है? एरिस्टोटल बोलना चाह रहा है कि भाई प्लेटो मेरा गुरु है, सब ठीक है, लेकिन मेरे लिए ट्रुथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेटो सारा गप बता रहा है, सिर्फ आइडियाज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। दैट इज व्हाई आई एम रिफॉर्मिंग प्लेटो। ठीक, नेक्स्ट लिखो। एरिस्टोटल के लिए बोला जाता है ही इज द मास्टर ऑफ दोज हु नो। ये डांते का स्टेटमेंट है। ही इज द मास्टर ऑफ दोज हु नो। ठीक है, तो यहां से क्या पता चल रहा है? दैट एरिस्टोटल ने नॉलेज के लिए कितना काम किया है। ठीक है, he has divided science into three parts and he has worked extensively on natural sciences, theology, etc. ठीक है, नेक्स्ट देखो। देखो, Aristotle is known as the father of Western logic. ठीक, नेक्स्ट लिखो, लॉजिक को अंडरलाइन करो। देखो, his work on logic is generally known as his work on logic, or the collection of work on logic is known as organon. organon। ठीक है, ये भी एक स्टैंड अलोन क्वेश्चन बन सकता है, दैट with whom do you associate organon? Organon is his work on logic। ठीक है, इसमें लिखो, लिखो he he develops he develops prior and posterior analytic। he developed prior and posterior analytics। अब इनका बस ये नाम याद कर लो, इसको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बट यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट हाउ इज ही ट्राइंग टू गिव द होल सिस्टम ऑफ एक्सियम्स, सिलॉजिज्म एंड हाउ एक्सियम शुड बी। तो ऐसे सेंटेंसेस में वो करने की कोशिश करता है, जैसे कि ऑल सीड्स आर ट्री, तो ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हो गया, वो कितना ट्रू है कितना नहीं है, इसके क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक्सेट्रा। दिस इज हाउ ही डेवलप्स हिज नॉलेज। This is how he tried to understand that whether certain reality is true or not.
ये पूरा लॉजिक वो डेवलप कर रहा है जिसमें कि प्रोमिनेंट कॉन्सेप्ट वो जो दे रहा है प्रायर एंड पोस्टीरियर एनालिटिक्स के, ठीक है। तो बस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इन ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन की इन whom we can identify the concepts such as prior and posterior logic, ठीक है। नाउ राइट नेक्स्ट, देखो देखो, अनलाइक अनलाइक Socrates, who criticized rhetoric, who criticized rhetoric, ठीक, देखो कॉमा, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल sees function of rhetoric as well, sees a function of rhetoric as well, ठीक। देखो rhetorics are means, rhetorics are means through which, are means by which truth can be understood, truth can be understood with the help of language, ठीक। नेक्स्ट लिखो, लिखो he divides rhetoric into three parts, he divides rhetoric into three parts, ठीक। फर्स्ट इज deliberative rhetoric, deliberative rhetoric, ठीक है। आप डेलिब्रेट कर रहे हो, डेलिब्रेट किसके लिए करते हो, फ्यूचर के लिए करते हो, डैश करके लिखो, इट इज कंसर्न्ड विथ फ्यूचर, it is concerned with future, ठीक। सेकंड लिखो, forensic rhetoric, forensic rhetoric, forensic rhetoric, ठीक है। तो लिखो इट इज कंसर्न्ड विथ पास्ट, गड़े मुर्दे उखाड़ते हो, फॉरेंसिक, इट इज कंसर्न्ड विथ पास्ट, एंड द थर्ड इज, and the third is display rhetoric, display rhetoric, ठीक है। लिखो लिखो, it is concerned with, it is concerned with the present, it is concerned with the present, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, देखो एरिस्टोटल्स व्यू ऑन रेटरिक्स, Aristotle's views on rhetorics can be found in his dialogue, can be found in his dialogue Gryllus, can be found in his dialogue Gryllus, in which, in which he has criticized, in which he has criticized
आइसोक्रेट, आइसोक्रेट, तो आइसोक्रेट एक एग्जिस्टिंग रेटोरिशियन था, तो एरिस्टोटल ने उसको क्रिटिसाइज किया है और अपने काइंड ऑफ रेटरिक्स बताए हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट कितना हुआ, अब राइट नेक्स्ट लिखो, हाइलोमॉर्फिज्म इन एरिस्टोटल, हाइलोमॉर्फिज्म, हाइलोमॉर्फिज्म इन एरिस्टोटल। ठीक, तो बेसिकली हाइलोमॉर्फिज्म एज अ कॉन्सेप्ट एक्चुअली कम्स टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स चेंज, ठीक है। तो चेंज को समझाने के लिए हाइलोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो ऐसे अंडरलाइन करो हाइलोमॉर्फिज्म एंड राइट, देखो कॉन्टेक्स्ट इज टू अंडरस्टैंड नेचुरल चेंज, कॉन्टेक्स्ट इज टू अंडरस्टैंड नेचुरल चेंज, ठीक, अंडरलाइन करो नेचुरल चेंज। देखो एरिस्टोटल टॉक्स अबाउट टू काइंड्स ऑफ चेंज, एरिस्टोटल टॉक्स अबाउट टू काइंड्स ऑफ चेंज, ठीक है। पहला लिखो सब्सटैंशियल चेंज, सब्सटैंशियल चेंज, another is non substantial change, ठीक। तो वो क्या कह रहा है, कोई भी चीज जो होती है जो वो हमेशा चेंज में होती है, ठीक है, बिकॉज चेंज इज कांस्टेंट। अब व्हेन अ थिंग इज मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अदर, उसको मूव कौन करवा रहा है, उसके बारे में भी आपको जानना है, जो जिस स्टेट से जिस स्टेट में जा रही है उसको भी जानना है आपको, ठीक है। तो सब्सटैंशियल चेंज कब होता है, फॉर एग्जाम्पल अ सीड व्हेन इट इज गिविंग राइज टू अनदर ट्री, ठीक है, या उस सीड का आगे जाकर के भी सीड हुआ और उसने भी उस जैसा ही एक पेड़ बनाया, दिस इज अ वेरी सब्सटैंशियल चेंज। व्हाट इज नॉन सब्सटैंशियल नेचुरल चेंज, कि मान लो ग्रीन मैंगो था वो पक के येलो हो गया, दिस इज नॉन सब्सटैंशियल चेंज, गॉट इट। And here only to understand these kind of changes he introduces the concept of actuality and potentiality। तो actuality जो जिस स्टेट में आप एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर था वो ऐसा ब्रॉन्ज एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है, अब उसकी पोटेंशियलिटी क्या थी, एक स्कल्पचर बनने की, वो बन गया, गॉट इट। तो इसमें लिखो सब्सटैंशियल चेंज में लिखो, लिखो व्हेन अ सब्सटेंस इज जनरेटेड, व्हेन अ सब्सटेंस इज जनरेटेड, लिखो फॉर एग्जाम्पल when the seed of a plant, when the seed of a plant gives rise to another plant of the same kind, another plant of the same kind, ठीक। और नॉन सब्सटेंशियल में ऐड करो, लिखो, लिखो व्हेन द चेंज, लिखो व्हेन द चेंज is only with respect to accidental qualities of a substance, accidental qualities of a substance, comma,
ठीक है, तो एक्सीडेंटल क्वालिटीज में ही ठीक है, तो लिखो फॉर एग्जाम्पल चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ कलर इन अ राइपनिंग मैंगो। ठीक, राइट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एरिस्टोटल गिव द आइडिया ऑफ एक्चुअलिटी एंड पोटेंशियलिटी। टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया ऑफ चेंज, दिस आइडिया ऑफ चेंज। ठीक, तो ये एक हॉल, इसी को हम बोलते हैं हाइलोमॉर्फिज्म, ये याद रखिएगा। एक्चुअलिटी, पोटेंशियलिटी, चेंज, ये सब यहां से हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, लिखो ही यूजेस द एग्जांपल ऑफ, ही यूजेस द एग्जांपल ऑफ ब्रॉन्ज स्कल्पचर एंड snake to understand theory of four causes and and teleology, teleology। ठीक, अब देखो एरिस्टोटल के लिए जब हमने बोला हैप्पीनेस, जो मैंने बताई थी फ्लरिशिंग, वो कैसे आएगी, एक्टिविटी से। तो फॉर हिम व्हाट, हैप्पीनेस इज नॉट सम इमोशन, हैप्पीनेस इज ऑल अबाउट एक्टिविटी। वो कब डेवलप होगी, जब आपका कैरेक्टर डेवलप होगा। एंड दैट इज व्हाई ही अगेन गिव्स अ कॉन्सेप्ट known as habituation। ठीक, habituation, ये क्या बोलता है कि हर किसी का जो सोल होता है उसमें पैशन होता है, पावर होता है। पैशन और पावर जब अलाइन हो जाए, पैशन और पावर सही जगह हैबिचुएट हो जाए, तो आपका ऐसा कैरेक्टर डेवलप होता है कि आप इवेंचुअली जो है, फिर आप जो है एक्सीलेंस पाते हो। व्हाट इज एक्सीलेंस हियर, नॉट बेस्ट, इट्स बेस्ट प्रैक्टिकेबल। ठीक है, तो ऐसे नेक्स्ट करके लिखो, देखो द कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिचुएशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिचुएशन। ठीक है, तो लिखो, लिखो फॉर एरिस्टोटल हैप्पीनेस इज एन एक्टिविटी, हैप्पीनेस इज एन एक्टिविटी। ठीक है, डैश करके लिखो, वर्च्यू एथिक्स, वर्च्यू एथिक्स। ठीक है, लिखो देयरफॉर इट डिमांड्स द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, अंडरलाइन करो, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। लिखो, लिखो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल a human psyche, psyche, soul ही समझ लो, sort of a human psyche is made up of three parts, is made up of three parts। ठीक है, पहला लिखो पावर, पहला लिखो पैशंस, पैशंस। ठीक है, दूसरा लिखो पावर, POW या पावर, और तीसरा लिखो हैबिट्स, हैबिट्स। ठीक, ऐसे लिखो, लिखो ओनली व्हेन passion and power, passion and power are aligned in such a manner to create such habits
which helps in the development of a character, which helps in the development of the praiseworthy character, helps in the development of praiseworthy character, comma, only then we can say, only then we can say that human psyche is habituated. Human psyche is habituated. ठीक, अंडरलाइन करो habituated, लिखो once human psyche is habituated, comma, only then arete or excellence develop, arete or excellence develop. ठीक, देखो for this ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट। तो देखो यहाँ पे ये प्रैक्टिकल चीजें की बात कर रहा है, एक्टिविटी की बात कर रहा है। तो जहां प्लेटो ने सारी इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को दी थी, एरिस्टोटल प्रैक्टिकल नॉलेज को भी इंपॉर्टेंस दे रहा है, नॉट ओनली एजुकेशन। तो फॉर एरिस्टोटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, but the thing is we do not know everything about his views on education because it was an unfinished work। ठीक है, तो ऐसे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो फॉर दिस both education as well as training is important, both education as well as training is important। Write a few more things। I think I'm mostly done with other kinds of facts। लॉजिक वॉजिक भी बता दिया मैंने इसका मेजरली। अब ऐसे लिखो, हाँ देखो देखो, एरिस्टोटल्स स्कूल इज नोन एज, Aristotle's school is known as Lyceum slash gymnasium, Lyceum slash gymnasium slash peripatetic school। पेरीपिटैटिक स्कूल, ठीक है, क्यों ये ऐसी कोई फैंसी यूनिवर्सिटी नहीं थी कि उसमें ब्रोशर होता था, एडमिशंस होते, नहीं। इट वाज मोर लाइक एन ओपन यूनिवर्सिटी जिसमें कि एरिस्टोटल दिन में सिर्फ स्टूडेंट से बात करता था, शाम को पब्लिक के लिए ओपन होती थी। ठीक है, तो लाइसियम, जिम्नेशियम, पेरिपेटेटिक। पेरिपेटेटिक क्यों? एरिस्टोटल जो है घूम घूम के पढ़ाता था, ठीक है, टहलते टहलते, ये नहीं मेरे तरह बैठ जाए और पढ़ा दे, ठीक है, घूम घूम के पढ़ाता था, इसलिए पेरिपेटेटिक स्कूल। अब नेक्स्ट लिखो, लिखो लिखो ही, लिखो was Aristotle was a tutor to Alexander the Great। ठीक है, and he was not a citizen of Athens, he was not a citizen of Athens।
ठीक है, इसलिए भी बोला जाता है कि लॉजिकली अगर आप देखोगे तो ये ही शुड बी द ट्रू इनहेरिटर ऑफ प्लेटो। लेकिन यही कारण था कि सिंस ही वॉज नॉट द सिटीजन ऑफ एथेंस एंड ऑल, तो इसको प्लेटो की एकेडमी नहीं मिलती, ठीक है, किसी और को दी जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, 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 थियोप्रास्टस। थियोप्रास्टस is the intellectual heir of Aristotle. Theophrastus is the intellectual heir of Aristotle. ठीक है, एक्चुअली इसने अपना ज्ञान उसको दिया, उसने अपना ज्ञान और आगे बढ़ाया, ऐसे दिस इज हाउ वी नो अबाउट एरिस्टोटल। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, देखो, एरिस्टोटल हैज ऑल्सो गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ reputable opinions, reputable opinions, ठीक, reputable opinions, अंडरलाइन करो, reputable opinions, ठीक, लिखो, लिखो, something which is believed by, something which is believed by all are or most clever men, all or most clever men, ठीक, ठीक, लिखो, अंडरलाइन करो रेप्यूटेबल ओपिनियंस को, लिखो, लिखो, Aristotle believed that Aristotle believed that knowledge grows by using tradition and investigating the reputable opinions. And write a few opinions on Plato, on Aristotle. ठीक, लिखो, लिखो, Maxi calls Aristotle first scientist. Maxi calls Aristotle first scientist. नेक्स्ट लिखो, सेबाइन, सेबाइन का लिखो, तो सेबाइन is actually comparing the idea of state between Plato and Aristotle, and then he is giving a statement. लिखो, what all he wrote, what all he wrote was a book, was a book
not on ideal state, not on ideal state, comma, but on the ideals of the state, but on the ideals of the state. अब नेक्स्ट लिखो, एरिस्टोटल का एक स्टेटमेंट लिखो रूल ऑफ लॉ को लेकर के, रूल ऑफ लॉ को लेकर के, ठीक है। व्हाई लॉज आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो जनरली लिबरल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, लॉज मोर लाइक अ नेसेसरी इविल एंड ऑल। ये बोल रहा है लॉज के बिना इंसान इंसान नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसमें लिखो, लिखो एरिस्टोटल का स्टेटमेंट है, डैश करके लिखो फॉर रूल ऑफ लॉ, फॉर रूल ऑफ लॉ लिखो मैन, कॉमा, मैन when perfected is the best of animals, is the best of animals, but when separated from law and justice, comma, he is worst of all, he is worst of all. I think that is all for Aristotle from my side. These were few extra facts, etc., that I could collect for Aristotle. I think they are more than sufficient, ठीक है। और एरिस्टोटल का हमको पता ही है कि वो एम्पिरिसिस्ट था, उसने काफ़ी फैक्ट्स एक्ट्स कलेक्ट किए हैं, एंड देन ही केम अप विथ ऑल हिज कैटेगरी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेजेस एंड ऑल, ठीक है। प्लीज़ गो थ्रू द हैंड आउट, और उसमें भी जो मैंने साइंस का कैटेगराइजेशन दिया है बाद में मॉडरेशन का, जस्ट गिव इट अ रीड, ठीक है। चलिए, दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू, हैव अ गुड डे।